Hey Balko, this is your biology teacher Ms. Poonam and I welcome you all in your biology class. So today we are continuing the same chapter, chapter number 3, human reproduction. We were talking about females, and in females we have completed the female reproductive system along with its gametogenesis, that is oogenesis. And now today we'll be talking about a change, which occurs in every woman's life, or every month they are they are having some kind of changes in their body. Not every woman, from the age of 13 to the age of 50, जो भी आपकी फीमेल्स हैं, ह्यूमन फीमेल्स हैं, 13 टू 50 एज तक की, उनकी बॉडी में आपको कुछ चेंजेस हर मंथ देखने को मिलते हैं। देखने को नहीं मिलते ऐसे, बट चेंजेस होते हैं जो फीमेल्स उनको पता होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। कुछ ब्लीड कर रहा होता है आपका बॉडी के अंदर, that bleeding comes out from the vagina. So what is that and why it is happening? You already have discussed this. You have already learned about the menstrual cycle in your 10th class, and in 12th you will come to know the description of that particular cycle. So क्या होती है menstrual cycle? We'll be talking about that today. Menstrual cycle. So we have already talked about the menstrual cycle, some things about this particular cycle in our chapter number first, when we were talking about the post fertilization changes. So in that topic we have discussed the primates, non-primates, and menstrual cycle and oestrus cycle. So what the all the primate females undergo some physiological changes every month. That is a cycle called as menstrual cycle. तो आपके जितने भी प्राइमेट्स में फीमेल्स देखने को मिलती हैं, तो वहाँ एक क्या होता है, साइकिल मिलती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. तो ह्यूमंस आर आल्सो प्राइमेट्स. ह्यूमंस आर व्हाट? आल्सो प्राइमेट्स. So if humans are primates, then it is obvious that in human females this cycle must be present, right? So what that's why we are discussing this cycle here in human reproduction. So what is this? These are the regular physiological change in interval in human females at every 28 to 29 days, right? So या फिर आप बोल सकते हैं at every, लिखना थोड़ा ठीक नहीं आएगा, एक मिनट. Females at interval of आपकी जो साइकिल है वो 28 टू 29 डेज की कंप्लीट होती है. अब ऐसा नहीं है मैंने 28-29 बोला तो यही होंगी. नॉर्मली बिकॉज ऑफ दी डाइट, और अभी आपका जो भी हैबिटाट है या आपका लाइफस्टाइल है, उसके बेसिस पे भी ये चेंजेस हो जाते हैं. नॉर्मली आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल की जो फीमेल्स हैं, ह्यूमन फीमेल्स हैं, उसमें 26, सबसे कम 26 टू 32 टू 34 डेज की साइकिल भी देखी जाती है. सो दिस इज नॉट exactly certain range of the cycle. रेंज क्या है, इतना डेज का पूरा गैप होता है, 28 to 29 ना, और है ये. So these are the regular physiological changes in female at every interval of every 28 to 29 days.
इनके बीच में एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है आपकी. दिस साइकिल इज बिकॉज ऑफ द this occur because of the occurs because of the influence of we have talked about the hormonal control. Here also we are talking about the those hormones that are GnRH. What is GnRH? Gonadotropin hormone. Gonadotropin releasing hormone. Is this the only hormone which is influencing this cycle? No. We have another hormones also. Those are called as ovarian hormones, or gonadotropin hormones. Gonadotropins. gonadotropins कौन से होते हैं बच्चों? LH and FSH. ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं बच्चों? एस्ट्रोजन and progesterone. We are not talking about inhibin here. We will be only talking about estrogen or progesterone. So these are the hormones which influencing this पर्टिकुलर साइकिल, जिसकी वजह से ये साइकिल हो रही है परफॉर्म आपकी. ठीक है, हार्मोन्स हो गए, कितने एज पे होती है, अच्छे स्टार्ट कब होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा से होते हैं? नहीं. जब फीमेल को प्यूबर्टी स्ट्राइक करती है, प्यूबर्टी menstrual cycle starts. Menstrual cycle initiate, begins to occur. Begins to occur. प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, आपकी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, that is menarche. This is puberty is what? Age of 12 to 13. Okay, and the last या फिर आप बोलेंगे menstrual cycle ceases at the age of 50 years. ठीक है, जब 50 years की होंगी लेडी तो आपकी जो menstrual cycle है वो स्टॉप कर दी जाएगी. That is menopause. ठीक है. सो क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? आपका एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हर महीने हो रहा है. ठीक है, और ऐसा नहीं है जो ब्लीडिंग वाला फेज है, दैट इज अ फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल. साइकिल में बहुत सारे फेजेस आएंगे, उनमें से एक फेज है जो ब्लीडिंग का फेज है. तो पूरे जो 28 दिन तक नहीं होगा आपकी, इसमें स्टार्टिंग के टाइम पे, स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज पे आपकी ब्लीडिंग होती है. आपकी मतलब कि जितने भी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके अंदर. ठीक है, और उसके बाद में भी फर्दर चेंजेस होते हैं, उनकी बात ही हम इस साइकिल में पर्टिकुलरली करने वाले हैं. ये साइकिल आपकी कब स्टार्ट होती है? जब आपकी GnRH मिलने लगता है. कब मिलता है आपको? प्यूबर्टी पे मिलता है. और इसी के साथ में आपके मेनार्च क्या कर दिया, मार्क कर दिया जाता है. दैट मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर की जाती है फीमेल बॉडी में एट द एज ऑफ 12 to 18 ईयर्स. 12 to 8 क्या लिखा है? 12 to 13 ईयर्स. ठीक है, ये जो आपकी साइकिल है दैट अकर्स in the influence of GnRH, gonadotropin releasing hormone, ovarian hormones. ovarian hormones हैं आपके
फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है आपके, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, एलएचएफ से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आपके पर्टिकुलरली कितने फेजेस होते हैं उनकी बात करेंगे, और क्या बोलते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी बात करेंगे। अभी मैं पहले फेजेस यहीं दिखा देती हूँ, लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो बच्चों इसमें कौन कौन से आपके फेजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेंसेस या ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब यहाँ पे जो ब्लीडिंग का फेज है वो चलेगा आपका। सेकेंड फेज इज व्हाट, फॉलिकुलर फेज। इसी के साथ साथ बच्चों चलेगा एक और फेज जिसको आप कहते हैं प्रोलिफरेशन फेज। इसी को एक और नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द हार्मोन विच इज इन्फ्लुएंसिंग दिस फेज, दैट इज एस्ट्रोजन। Okay, now the third phase is what, the luteal phase, secretory phase, और इसको भी आप एक और एस्ट्रोजन फेज, उसको भी आप हार्मोन के बेसिस पे एक और नाम देंगे। यहाँ जो आपका मेनली वर्क करेगा इन सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज में, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। These three phases are involved in this particular cycle, that is menstrual cycle. What is happening here, एक शॉर्ट में बताते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मेंसेस क्या है बच्चों, जहाँ पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग वाला फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एक फेज से, दैट इज कॉल्ड मेंसेस ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। ये नॉर्मली सुना होगा पीरियड्स हो रहे हैं, फीमेल्स यूज दिस टर्म पीरियड्स। क्यों पीरियड यूज किया जा रहा है, बिकॉज ये पीरियड में हो रहा है, पीरियड टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे पर्टिकुलरली हर मंथ कुछ होता है, चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। द ब्लीडिंग कम्स आउट फ्रॉम द विजाइना। क्या होता है वो फेज आपका होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है जो कि इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 to 5 days का होता है, चलता है ये। उसके बाद आपका ये फेज स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज। ये कहाँ तक रहेगा, 3 to 5 तक रहेगा। उसके बाद ये फेज 6 डे से स्टार्ट होता है, ये 14th डे तक रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द फेज ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है कि, इसको रब कर देती हूँ मैं नीचे वाले को, स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों हो क्या रहा है मेंस्ट्रुअल फेज में आपके, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हो रहा है, what is this, that's the uterus of female। We have talked about the 3 layers of uterus. The first one is what, the perimetrium, second one is myometrium। in this particular cycle आपको किसका मतलब है, आपको किससे मतलब है, एंडोमेट्रियम, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियम। यहाँ पर आपका रोल इसी का है, इसी की वजह से आपको क्या है, ब्लीडिंग हो रही है। क्यों, क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज
आवर यूट्रस इज प्रिपेयरिंग एवरी मंथ फॉर कंसीविंग बेबी। क्या है आपका जो जाइगोट है कहाँ पर, एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्दर क्लीवेजेस होंगे, बहुत सारे डिविजन्स होंगे, तो मोरेला स्टेज आती है, गैस्ट्रुला, बहुत सारी स्टेजेस आ रही हैं। तो आपकी क्या है लास्ट में जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यही मान लीजिए क्लीवेज के बाद में जो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स आ रही हैं जो कि बेबी फ्यूचर बेबी बनने वाला है वो यहाँ पर आके इम्प्लांट किया जाएगा, है ना। इम्प्लांट करने के लिए प्रिपरेशंस की जाती हैं, इन सेल्स को बढ़ाया जाता है, एंडोमेट्रियम को, राइट। तो ये एंडोमेट्रियम जो बड़े थे और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है हर मंथ ये जो आपकी लेयर है ये क्या होती है आपकी श्रेड ऑफ की जाती है, श्रेड ऑफ हो जाती है। श्रेड ऑफ मतलब आपकी रप्चर कर दी गई है, रप्चर हो गई। अब क्या है ये जो ब्लड है ये हर मंथ फीमेल बॉडी से क्या निकाला जाता है बाहर थ्रू दी वेजाइना। तो ये क्या होती है आपका फर्स्ट फेज है आपका जो कि चलता है आपका 3 to 5 डेज। इस टाइम पे आपका क्या है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस when no fertilization occur, when no fertilization occur, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, ब्लीडिंग कम्स आउट, bleeding comes out from a vagina, ठीक है। इसका अमाउंट कितना होता है, कितना अमाउंट में आपका ब्लड जो है हर मेंस्ट्रुअल फेज में निकल जाता है, दैट इज 75 to 100 ml। इतना क्या है आपकी जो ब्लीडिंग होती है उसका अमाउंट इतना होता है जो कि लॉस किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ में बच्चों क्या होता है जब आपके ये कब मतलब हार्मोनली सब चीजें देख रहे हैं हम लोग, ये फेज आपका कब आता है, आपके हार्मोन्स में क्या रिएक्शंस होते हैं जब आपके क्या होते हैं गोनाडोट्रोपिन, गोनाडो एंड ओवेरियन हार्मोन, उनका अमाउंट क्या है डिक्रीज होता है, लो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जैसे लो जाती है दिस मेंस्ट्रुअल फेज अकर्स, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है क्योंकि हार्मोन्स क्या हो गए अब लो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्यों कम हो रहे हैं, तो क्यों हो रहा है क्योंकि जो ये बच्चों ये एनलार्जमेंट या फिर प्रोलिफरेशन हो रहा था, ये सेल्स बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, हम पढ़ चुके हैं। प्रोजेस्टेरोन आ रहा था वो सिक्रीशन करवा रहा था यहाँ पर फॉर टू हेल्प द इम्प्लांटेशन प्रोसेस, तो प्रोजेस्टेरोन भी बंद हो गया। इन दोनों को सिक्रीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, एलएच और एफएसएच। एफएसएच आपका एस्ट्रोजन करवा रहा था, एलएच जब आया तो उसने रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में बना कन्वर्ट किया, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करने लगा था आपके सिक्रीट कर रहा था प्रोजेस्टेरोन। तो जब इन हार्मोन्स कम हो गए तो ये जो आपका प्रिपरेशन थी प्रेगनेंसी के लिए वो क्या है मेंटेन नहीं की जाएगी, तो ऑब्वियसली जब इनका लेवल गिरेगा तो आपकी ये जो वॉल है जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस है वो शेड ऑफ होंगी, ये मेंटेन नहीं रह पाएंगी यहाँ पर। तो ये होती है आपकी क्या मेंस्ट्रुअल फेज जो कि फर्स्ट साइकिल है किसकी, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। क्या बातें याद रखनी है बच्चों इसमें, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब होती है ये, अगर फर्टिलाइजेशन और अगर ये नहीं हो रही है, अगर मेंस्ट्रुअल फेज ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इफ no menses, this signifies pregnancy। अगर किसी लेडी को क्या है मेंसेस नहीं हो रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है अपने टाइम पर, तो क्या होता है ये अंदाजा लगाया जाता है दैट पर्टिकुलर लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं है हमेशा प्रेगनेंसी को आपको क्या करेगा सिग्निफाई करेगी वो चीज, स्ट्रेस टेंशन की वजह से भी, टेंशन की वजह से भी क्या होता है बच्चों मेंसेस नहीं होते हैं, मैंने गलत लिखा है, मेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या है स्ट्रेस और टेंशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है इन पे, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये प्रोसेस तब फेज होगी, कौन सी ब्लीडिंग वाली फेज तब होगी। उसके बाद में जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से वेजाइना से निकल रही है, कैरेक्टरिस्टिक है आपका कि कैसे पता चलेगा यही फेज है,
तो इसी से स्टार्ट हो जाती है। जैसे लेडी किसी भी फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, दैट मीन्स उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। शुरुआत के 3 से 5 दिन तक ये चलती है। कुछ वोमेंस में आपको 3 दिन की या कुछ फीमेल्स में आपको 3 दिन की दिखेगी, किसी में आपको 5 डेज की दिखेगी। इसमें कैरेक्टरिस्टिक है इतना अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर जो भी आपका ये ब्लीडिंग हो रही है वो लॉस की जाती है। अच्छा हाँ, इसमें होता क्या क्या है बच्चों, ब्लड नहीं सिर्फ आपका ब्लड है नहीं है, आपका ब्लड होता है, आपका सीरम या फिर फ्लूइड कहेंगे आप, सीरस फ्लूइड होता है, और आपके क्या होता है म्यूकस के म्यूकोजल फ्रैगमेंट्स होते हैं। इंटरनल जो आपकी वॉल थी वो उस म्यूकस सिक्रीट कर रही थी। ये होता है आपका क्या कॉम्पोजिशन, मेंसेस में जो क्या है वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट होता है, अगर नहीं हो रही मेंसेस दैट मीन्स प्रेग्नेंट है वुमन, या फिर क्या है स्ट्रेस या टेंशन की वजह से भी ये कॉज होता है। ये कब हो रहे हैं आपके, जब हॉर्मोन्स आपका क्या है डाउन जा रहा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है। ठीक है, so this is for the menses, bleeding or menstrual phase. Now let's talk about the second phase, that is follicular phase and proliferation phase. Now let's talk about the second phase. अच्छा, इसके लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, तो मुझे ऊपर ही लिखने को कौन सा फेज है बच्चों इसका। सेकेंड फेज was the follicular phase, follicular and proliferation. ठीक है, these two phases are occurring in different parts. वैसा नहीं है इसी को ये बोल रहे हैं इसी को ये बोल रहे हैं। आपका फॉलिकुलर फेज जो है बच्चों, वो फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट है आपके ओवरी में, तो दिस पार्ट इज occurring in ovary and this phase is in uterus. How that follicles are maturing या फिर undergoes maturation in ovary. ठीक है, that is follicular phase. Proliferation means the proliferation of the cells of endometrium wall to prepare that uterus for the implantation. ठीक है, उसके लिए आपका जो फेस है उसे प्रोलिफरेशन फेस कहेंगे। कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, प्रोलिफरेशन बता देती हूँ, हल्का सा है छोटा सा है, फिर हम लोग एक खट्टा सा क्या है डायग्राम बनाकर मैं ओवरी का फॉलिकल्स के बारे में बता दूंगी। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है बच्चों। जब आपके मेंसेस होते हैं 3 to 5 डेज, क्या होता है आपकी जो वॉल रप्चर हुई है, यहाँ से वॉल क्या हो गई थी, रप्चर हो गई थी, अब क्या हो गई, कम रह गई है वॉल, है ना। इसको और थोड़ा कम कर लेते हैं। रप्चर हो गई थी, ठीक है, और क्या हो गई थी, इनकी नर्विंग हो गई थी आपकी कैविटी, किसकी, यूट्रस कैविटी, क्योंकि यहाँ पर रप्चरिंग के बाद ब्लड लॉस हुआ था, सेल्स क्या होती थी लॉस कर दी थी। तो क्या होता है आपके प्रोलिफरेशन फेज में, वो 3-4 दिन के बाद 2 दिन तक तो आपका कुछ क्या काम होता है, देखो इसको रब कर दूंगी बाद में। क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 2 डेज थे, 2 डेज होते हैं आफ्टर 3 to 5 डेज, मतलब 2 दिन नहीं, स्टार्टिंग के 2 दिन नहीं, साइकिल के स्टार्टिंग के 2 दिन नहीं, आफ्टर मेंसेस जो स्टार्टिंग के 2 डेज होते हैं, उसमें जो आपकी यूट्रस होती है उसमें क्या होता है बच्चों, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रप्चर हुई है ब्लड वेसल्स वो रिपेयर होंगी। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, द वॉल जो आपके अंदर की एपिथेलियम है वो क्या होगी, एंडोमेट्रियम की रीएपिथेलियलाइजेशन, ठीक है, मतलब एपिथेलियम लेयर जो है वो दोबारा बनेगी ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तो हो गई
दोबारा से उसको जो रिपेयर करा जा रहा है वो उस बात हो गई। आफ्टर दिस अबाउट 7 to 9 days, 2 दिन के बाद 7 से 9 दिन लगेंगे आपके दोबारा इसके थिकनिंग होने में, थिकनिंग proliferating of endometrium, जिसके बाद में that results 3 mm thick endometrium। ठीक है, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब शेड ऑफ कर दिया हर महीने दोबारा क्या होती है, प्रिपेयर की जाती है बॉडी। शेड ऑफ करने के बाद में क्या हुआ, होता क्या है ना बच्चों, जो आपके जो हार्मोन्स थे उनका जो रिड्यूस हुए थे वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे आपको, किसको, हाइपोथैलेमस को। किसके लिए, जीएनआरएच के लिए। और वो देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, किसके लिए, गोनाडोट्रोपिन्स के लिए, जो कि होते हैं आपके एलएचएन एफएसएच, है ना। तो ये एफएसएच आकर क्या करेंगे, जाके फॉलिकुलर फेज स्टार्ट करेंगे, अभी बात करेंगे हम, वहां से एस्ट्रोजन आने लगेगा। ठीक है, आता रहेगा एस्ट्रोजन की वजह से। ये जो आपकी दोबारा से थिकनिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की, वो किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से होती है। एस्ट्रोजन क्या कर देता है, प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था, इसलिए मैंने पहले बता दिया था, जबकि इसमें मुझे बीच में बताना चाहिए था। इट्स ओके। अब हम देखते हैं फॉलिकुलरली क्या रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हो रही हैं और कैसे हो रहा है, वो फेज देख लेते हैं। आई होप ये प्रोलिफरेशन समझ में आ जाए। बस इसकी जो बाइंडिंग होती है, जो इलॉन्गेशन प्रोलिफरेशन होता है या थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वो फेज हम देखते हैं प्रोलिफरेशन में। तो वो साथ में ही होता है फॉलिकुलर फेज के, क्योंकि फॉलिकल्स जैसे ही मैच्योर होते रहते हैं उनमें से हार्मोन निकलता रहता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी क्या होती है, आपकी प्रोलिफरेशन फेज होता है। तो लेट मी रब दिस, और आप फिर हम देखते हैं फॉलिकुलर फेज। तो बच्चों फॉलिकुलर फेज में हो क्या रहा है, लेट्स ड्रॉ द ओवरी फर्स्ट। कहेंगे ऐसी ओवरी बना रही है मैडम, बना लेते हैं चलो। हाँ, सपोज दिस इज व्हाट द फीमेल ओवरी, क्या है, ओवरी है। ठीक है, अभी तो दूर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लेबलिंग करनी है। अब जानते हैं 2 पार्ट्स में बटी है आपकी ओवरी। बाहर वाला एरिया जो होता है वो कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला क्या है, मेड्यूला, जहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, वो सब ओपन हो रही है, आ रही है आपकी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ऊपर क्या है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये फॉलिकल्स मिल रहे थे, ठीक है, राइट। ठीक है, फॉलिकल्स थे जिनके अराउंड क्या थी आपकी, सेल्स थी, प्राइम। ठीक है, डिवीजन के बाद सेल्स आने लगी। अच्छा, मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, तो आपका क्या मिला, आपको जब आगे गई सेल, देखो बच्चों, जब हमने देखा था मेंसेस हुए थे, तो आपका जो हार्मोन का लेवल था वो गिर रहा था, रिड्यूस हो रहा था। बिकॉज ऑफ दैट रिडक्शन ऑफ द लेवल ऑफ हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन, आपके हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल गया, क्या कि हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच रिलीज करने के लिए सिग्नल गया। ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। द रिडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन सेंड्स द पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस टू इनिशिएट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच। और जीएनआरएच क्या करेगा, जीएनआरएच इन रिटर्न इनिशिएट दी और इंड्यूस दी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। सो गोनाडोट्रोपिन्स आपके क्या है, आपके एलएचएन एफएसएच, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों रिलीज होने लगे। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे रिलीज होने लगेगा वो यहाँ आएगा, है ना, प्राइमरी oocyte में। क्या करता है, प्राइमरी oocyte की जो स्पिंडल सेल्स थी, ग्रैनुलर सेल्स या फॉलिकल सेल्स थी, इनमें आकर अटैच होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट प्राइमरी फॉलिकल,
दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, ये अंदर वाला नहीं पूरे फॉलिकल है, ठीक है। अब मैंने दो बनाए हैं, होता क्या है आपके 6 to 12 एवरी मंथ, या दोनों में से एक ओवरी ऑल्टरनेट चलता है इस ओवरी में या फिर इस ओवरी में। ऐसा नहीं है दोनों ओवरीज में काम चल रहा है, नहीं, ऑल्टरनेट मंथ्स में होता है। इस ओवरी में आज काम करना है तो दूसरी ओवरी में दूसरा। अब ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही क्या है आपका फॉलिकल आगे तक जाएगा मैच्योरेशन के प्रोसेस में, नहीं, आपके 6 to 12 जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में वो आपके आगे जाते हैं। आपने पढ़ा था ना कि फर्दर प्यूबर्टी तक आते आते कितने फॉलिकल्स बचते हैं बच्चों, 12 कितना बताया था, 1,20,000 टू 1,80,000 आई गेस, है ना, इतना ही था, मुझे रेंज याद नहीं रही, देख लेना आप लोग। तो दोनों को कंबाइन करके मैंने जो रेंज बताई गई थी वो दोनों को कंबाइन करके बताई गई थी, ठीक है। 16 था आई गेस, अच्छा देख लेना तुम, 16 ही था, 1,60,000, ठीक है। तो ये दोनों भी कंबाइन करके थे। हाफ का भी पूछा जा सकता है कि एक ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचते हैं तब जाकर, और दोनों का कंबाइन भी पूछा जा सकता है, तो हाफ कर देना एक का, ठीक है। तो आपका क्या है 6 to 12 फॉलिकल्स हर मंथ क्या है एक ओवरी में क्या करते हैं, मैच्योरेशन के प्रोसेस में एंटर करते हैं, लेकिन बनता तो एक ही है। क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए और फर्दर क्या है मैच्योरेशन नहीं पॉसिबल हो पाए, तो क्या होगा, फिर तो लॉस कर जाएगा, जो सारी मेहनत करी है पूरे मंथ में साइकिल हो रही है वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए क्या है ये बहुत कुछ फॉलिकल्स इकट्ठा एक साथ क्या है मैच्योरेशन के प्रोसेस में एंटर करती हैं। सो ये एंटर करी, जैसे ही रिडक्शन हुआ किसका एलएच और एफएसएच का, उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि इसको हाइपोथैलेमस ने रिलीज करना स्टार्ट किया जीएनरेच, जिसने कि आपके पिट्यूटरी को इंड्यूस किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन्स कौन से होते हैं, एलएच एंड एफएसएच। एफएसएच आया और फॉलिकल की मैच्योरेशन को स्टार्ट कर देता है। मैच्योरेशन स्टार्ट हुआ बच्चों, अब आप जानते हैं प्राइमरी से क्या बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या था, अब मैं एक ही बनाऊंगी, है ना, कोई फायदा नहीं है बार बार बहुत सारे बनाने का। तो क्या है आपका, क्या क्या हो जाता है इसमें बच्चों, सेकेंडरी में लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, और कैविटी बनने शुरू हो जाती है, और क्या है थीका डेवलप हो जाती है, थीका सेल्स डेवलप हो जाती है, राइट। तो क्या है ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक। फिर इसमें फर्दर क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। यहाँ पर सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसमें क्या है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, टर्शियरी में होगा आई गेस। यहाँ से क्या है मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, फिर आएगा आपका टर्शियरी। यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉलिकल है वहाँ थीका सेल्स डेवलप हो जाती हैं, थीका लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। फिर फर्दर आगे गए, क्या हो गया आपका, बीच में जो कैविटी है, कैविटी यहाँ भी बनी थी, स्टार्ट हो गई थी। कैविटी क्या है बच्चों, एंट्रम, दिस कैविटी इज एंट्रम, ठीक है। और क्या हुआ, मैच्योर हो गया, और आपका जो अंदर फॉलिकल था वो भी क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, आपने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर चुका है, और अब ये सेकेंडरी फॉलिकल, अभी और इसमें ग्रोथ होगी, ये क्या हो गया, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल है, प्राइमरी। आफ्टर दैट इसमें क्या हो गया, लेयर्स को होती है बहुत इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस सेकेंड में एंटर कर गया आपका अंदर वाला oocyte, ठीक है। अभी प्राइमरी बोलेंगे इसको, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे। ये क्या है, oocyte, ये है सेल्स, ग्रेन्युलर सेल्स, राइट। अब यहाँ पर जो है कैविटी बन गई है, और enlarged होगी सेल, a number of layers will be formed around this follicle. This follicle is what, Graafian follicle, जिसमें कि आपके होगा सेकेंडरी oocyte भी क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अरेस्ट कौन से स्टेज में हो गई है बच्चों, हार्मोनल, वहाँ हम पढ़ के आ चुके हैं कौन से उस जेनेसिस में,
जो सेकेंडरी oocyte होती है वो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड रहती है, ठीक है। तो ये वो सेकेंडरी oocyte है और ये आपकी है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो है आपके ये बन रही है, ठीक है। जब आपके में जो थीका लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, थीका लेयर्स में आपका क्या होता है, जो थीका इंटरनल थीका एक्सटर्नल 2 लेयर्स होती हैं, इनमें आपका एलएच का रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो एलएच का रिसेप्टर यहाँ आएगा, साथ साथ में जो ये सेल्स के इतना ज्यादा नंबर बढ़ गया है आपका ग्रेन्युलर सेल्स का, फॉलिकल सेल्स का, इनसे क्या हो रहा था, सिक्रीट हो रहा था एस्ट्रोजन, ठीक है। इनसे क्या सिक्रीट हो रहा था, एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था। तो यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा बहुत, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एलएच भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा रिलीज, इट गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी टू रिलीज मोर एलएच, ठीक है। मोर एलएच के लिए ज्यादा क्या कर देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट एलएच भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता है एलएच का कंसंट्रेशन, राइट, बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये पढ़ चुके हैं हम इसमें हार्मोनल में। इन दोनों के हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या हो रहा था, ये जो आपकी ग्रेन्युलर सेल्स थी, ठीक है, इनकी इलॉन्गेशन बढ़ गए, आपके क्या है, इनसे फॉलिकुलर का जो आपका कनेक्शन था वो टूटने लगा, तो ये आके क्या करेंगे, रप्चर कर जाएंगे यहाँ पर। रप्चर कर गई, ठीक है। रप्चर करने के बाद में क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाएगा ओवरी से, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी यहाँ पर सेकेंडरी टर्शियरी में इसमें कुछ और कलर है, इसमें जोना प्लसिडा बन गई थी, है ना। तो आपका क्या है, ऐसे जो है ओवम का स्ट्रक्चर आपने देखा था, कुछ सेल्स के साथ में बाहर रिलीज आउट कर दी जाएंगी, ठीक है। क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर्ड and the release of secondary oocyte or ovum is क्या कहते हैं, is controlled or influenced by the LH hormone। कैसे हुआ, आपको जो रिलीज हो रहा है ओवम का फ्रॉम द ओवरी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, और ये जो पीछे रह जाता है इसको क्या कहते हैं, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। This one is what, secondary oocyte या ओवम भी कहते हैं आप इसको, लेकिन अरेस्टेड स्टेज में है, मेयोसिस सेकेंड इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बच्चों, उसमें क्या हो जाता है, आपके चेंजेस आते हैं, क्या हो जाता है, आपका इंक्लूजन हो जाता है लिपिड्स का थ्रू एलएच, ठीक है। इसीलिए इनका ल्यूटिनाइजिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूटिनाइजेशन। तो ये सेल्स क्या हो जाती है, इनमें चेंज आ जाते हैं, ये ल्यूटिल सेल्स बन जाती हैं। ल्यूटिल सेल्स कौन बना रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का नाम भी इसलिए इनके ऊपर, फीमेल्स की वजह से इन दोनों को नाम मिले हैं, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दोज आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम इस वजह से मिला है, इस फेज की वजह से मिला है साइकिल की, कि जब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, इसके फर्दर आगे क्या चेंजेस होंगे उसके बेसिस पे आपको उसको नाम मिला है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो, जो आपका फेज है फॉलिकुलर फेज, वो यहीं तक होता है, कहां तक, ओव्यूलेशन तक। दिस प्रोसेस इज व्हाट, ओव्यूलेशन, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। लेकिन डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर मैं थोड़ा सा आगे का बता देती हूँ, बट आपका जो बच्चों पार्ट है किसका, फॉलिकुलर फेज का, वो एंड होता है ओव्यूलेशन के साथ में, ठीक है, ओव्यूलेशन के साथ में ही एंड होता है। इसके आगे वाला फेज जो होता है वो ल्यूटियल फेज होता है। कौन सा फेज होता है, ल्यूटियल। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल की सेल्स हैं, ग्रेन्युलर सेल्स, इनको ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपका इंक्लूजन हो जाता है किसका, लिपिड्स का, लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। वो करती कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है ये सेल्स, ऐसे मान लो, चलो
ये फ्लूइड था. दिस इज व्हाट कॉर्पस ल्यूटियम. ग्राफियन, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम किसने कन्वर्ट किया है इनको? एलएच में, थ्रू द प्रोसेस ल्यूटिनाइजेशन. ठीक है, ल्यूटिनाइजेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ लिपिड. यहाँ पे ल्यूटीन वर्ड इज सिग्निफाइज द लिपिड मॉलिक्यूल. ठीक है, नाइजेशन का मतलब डिपोजिशन. तो ये यहाँ पर क्या है, इन्फ्यूजन कर रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स का. सेल्स ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट कर दी गई हैं. क्या है? ल्यूटीन सेल्स. ल्यूटीन सेल्स बन गई हैं कौन सी? ग्राफियन. जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थी, ठीक है, वो किसमें? ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट कर दी गई हैं. अब ये क्या हो जाएगा आपका? कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम आपका अभी भी सीक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बन जाता है बच्चों, यहाँ से 3 हार्मोन्स है सीक्रेट हो रहे हैं. एस्ट्रोजन जो है वो कम अमाउंट में सीक्रेट हो रहा था. इनहिबिन भी हो रहा था, जो कि काम आ रहा था किसमें? फीडबैक देने में. और एक और हार्मोन है इंपॉर्टेंट, क्या रिलीज हो रहा था? प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अब हेल्प करेगा किसमें? सिक्रेटरी फेज में. तो ये पार्ट वहीं का आ जाता है आपका. ठीक है, बस डायग्राम के लिए कल मैं डायग्राम या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सेकंड फेज पढ़ेंगे तो डायग्राम नहीं बनाऊंगी मैं, इसलिए यहीं पे थोड़ा सा देख लो. ठीक है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी तो उस प्रिपरेशन का क्या फायदा? सिक्रेटरी फेज का क्या फायदा? प्रोलिफरेशन का क्या? ये जो थिकनिंग हुई है एंडोमेट्रियम में, कुछ नहीं चाहिए अब हमें, है ना. तो आपका क्या है, इन हार्मोन के जो आपकी वो है, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्शन है, वो भी रुक जाएगी. ठीक है, तो ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो इस डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्बिकम. ठीक है, अब देखो, दिस फेज इज व्हाट? ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज है. ये जो बाहर वाला फेज था बच्चों वो है फॉलिकुलर फेज. ठीक है, तो फेज यहाँ पर समझ में आया आपको? हमने फॉलिकुलर और प्रोलिफरेशन फेज कर लिया है, थोड़ा सा पार्ट ल्यूटियल फेज का भी कर लिया है. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल complete these phase, luteal phase and secretory phase along with the diagram. And in the last I will draw that graph, या फिर जो आपके रिप्रेजेंटेशन है जिसमें यूट्रस में जो साइकिल हो रही है या फिर हॉर्मोन्स के ग्राफ बन रखे हैं, आई विल ड्रॉ दैट और उसके थ्रू आपको समझाऊंगी पूरी साइकिल एक बार में. ठीक है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें कब कब हो रही है, ओव्यूलेशन कितने टाइम हो रहा है. सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल और पढ़ते रहिए.